الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا ابن عبد الله العربي الهاشمي الذي عبد الله ورسوله أرسله كافة للناس بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ اگر ہم واقعی اپنے رب کو رب مانتے ہیں، ہم یہ مانتے ہیں کہ سب کچھ کرنے والا ہمارا مالک ہی ہے، تو ہماری سوچ یہ ہونی چاہیے کہ ہر قسم کی تعریف اور کریڈٹ، ساری بزرگی اور کبریائی، ہر قسم کی مہانتا اور گریٹنس اللہ ہی کے لیے ہونی چاہیے، جو وحدانیت جیسی اعلیٰ شان والا ہے۔ کوئی اس قابل نہیں کہ اس کی برابری کر سکے، اسے کسی پارٹنر اور جوڑ کی کبھی ضرورت نہیں، وہ اپنے آپ میں مکمل اور پرفیکٹ، کسی سہارے یا فرد کی اسے ضرورت نہیں، بلکہ ہر ایک کا سہارا وہ، ہر ایک کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا وہی ایک اکیلا مالک۔ سنسار کے پیدا کرنے والے مالک نے اس دنیا کے پہلے جوڑے اور ان کے آنے والی تمام نسلوں کی ضروریات، بقا اور نشو و نما کے لیے لگنے والی چھوٹی سے چھوٹی ضرورت کا بھی انتظام کیا۔ انسانی ضروریات کے لیے تمام خزانوں سے اس زمین کو مالا مال کیا، پہاڑوں کے اندر معدنیات اور منرلز کے خزانے دفن رکھے، زمین کے نیچے پیٹرول اور گیسز کے سمندر اسٹور کر کے رکھے، پہاڑوں کے اوپر عمارتی لکڑیوں کے لیے درخت اگا کر رکھے، اونچے اونچے پہاڑوں کے باوجود ان کے دامن میں ہری بھری وادیاں بھی بنائیں، زمین میں انسان کو چلنے پھرنے کے لیے راستے اور لینڈ مارکس رکھے، انسان کی رفتار کو تیز کرنے کے لیے گھوڑے جیسا تیز رفتار جانور پیدا کیے، سامان کو لانے لے جانے اور کیریئر کے لیے گدھے سے لے کر اونٹ اور ہاتھی کی طرح کے حیوانات پیدا کیے، پینے کے لیے پانی کے دریاؤں کا جال بچھا دیا، انڈر واٹر پانی کے چینلز موجود رکھے، سمندروں کے کھارے پن سے انسان کی غذا کے لیے نمک جیسی قیمتی شے نکالا اور ان سمندروں کو ٹریڈ کا ذریعہ بنا دیا۔ اگر انہیں گننے جائیں تو کئی دن لگ جائیں ان نعمتوں کو گننے کے لیے، پھر بھی ہمارے رب کی نعمتوں کی لسٹ پوری نہ ہو۔ اس لیے رب کائنات نے اپنے آخری کلام میں فرمایا وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ۔ اور انسانوں، تمہارے رب نے بن مانگے تمہیں لگنے والی وائٹل چیزوں کو تمہیں عطا کیا، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم ان کی گنتی بھی نہ کر پاؤ۔ بے شک انسان ناشکری کر کے اپنے آپ کا ہی نقصان کرنے والا ظالم ہے۔ اب آسمان اور اس کی خوبصورت مجلس پر بھی سوچے، خوبصورت سا چاند بنایا، چمکدار سورج بنایا، ستاروں کی انجمن سجائی، بھاری بھاری بادلوں سے بوند بوند بارش برسائی، معدنیات اور منرلز کے خزانے لیے ہوئے پہاڑی سلسلے، صاف کل بہتی ہوئی پانی کی ندیاں، جھیل اور آبشار بھی بنائے، آکسیجن سے بھرپور ہوا عنایت کی، خوشنما سبز لباس پہنی نباتات اور ویجیٹیشن پیدا کی، پھولوں سے لدے باغات، پھلوں کے بوجھ سے جھکے جھکے درخت، اس چیز کی گنتی کریں، ہر شے کو حکم دیا کہ اس انسان کے لیے سب سروینٹ بنے رہنا، فنکشنل بنے رہنا، فائدہ پہنچاتے رہنا، خدمت کرتے رہنا۔ ہاتھی کو بتایا کہ کمزور ہے یہ انسان، مگر ہم نے اسے عقل اور علم دیا ہے، فزکس اس کی کمزور ہے لیکن حوصلے اس کے بہت بلند ہے، اس کے کاموں میں اس کا معاون اور سپورٹر بنے رہنا۔ گھوڑوں کو بتایا کہ اس کی سواری کے کام آنا، گدھوں اور کھچروں کو بھی بتایا کہ اس کے سامان کو اٹھا کر چلنا، اور مویشیوں کو بتایا کہ اسے خوراک میں دودھ، گوشت اور اون سے لے کر چمڑا تک فراہم کرنا۔ کس مخلوق کا ہم شمار کریں، کیا کیا گنتی کریں۔ دھیان دیں کہ یہ چمکتا ہوا تابناک سورج اپنے مقرر وقت پر بغیر کسی سستی اور کاہلی کے دنیا میں اجالا بکھیرتے ہوئے طلوع ہوتا ہے، اور فرما برداری کے ساتھ اپنے وقت پر غروب بھی ہو جاتا ہے۔ اگر سورج کی تپش نہ ہو تو اس زمین پر اتنے بیکٹیریاز پھیل جائیں کہ ہماری غذا، پودوں، پھلوں اور پھولوں تک کا پنپنا ناممکن ہو جائے، ہماری آثار زندگی ختم ہو جائے۔
वो सूरज दिन का उजाला बिखेरता है ताकि हम इंसान अपनी इकोनॉमी, माश और हमारे रब के हमारे लिए तैयार किए गए रिस्क को हासिल करने के लिए मेहनत और कोशिशें करें। और दिन के खत्म होने पर जब ये गुरूब होने लगता है तो धीरे धीरे रात अपने पर फैलाती है। अंधेरे की खूबसूरत चादर लिबास की तरह इस ज़मीन को अपनी आगोश में छुपा लेती है। दिन भर की हमारी थकान सूरज की गर्मी को अपने बदन पर झेलने के बाद राहत और सुकून का ऐसा माहौल बनाती है कि प्यारी सी नींद हमें अपने आगोश में ले लेती है, ताकि नींद के जरिए हम अपनी थकान को दूर करके एनर्जी को दोबारा हासिल कर सकें। इस तरह हम इंसानों के कॉमन सेंस को दावत दी कि इस प्रोसेस पर गौर करो कि किस तरह हमारा रब हम पर अपनी नेमतें निछावर कर रहा है। हम एक ऐसी मखलूक है जिन्हें रब ने अक्ल फहम देकर इज्जत बख्शी है, और अपने रब के फेवर्स के जरिए ही हम एक मखसूस रफ्तार से अपनी उम्र इस दुनिया में पूरी कर रहे हैं। बचपन से जवानी में दाखिल होते हुए हम बूढ़े भी होते जाएंगे। ये सारा सर्कल हमारे रब का तरफ से तय किया हुआ है और हमारा इसमें टेस्ट हो रहा है, ताकि हमेशा हमें ये याद रहे कि इतने सारे फेवर्स के साथ इस दुनिया में ज़िंदगी गुजारने के बाद अपने शब व रोज़ का अपने मालिक को हमें एक दिन हिसाब देना है। हमारे मालिक ने हम इंसानों को एक बेहतरीन दुनिया अता की थी जिसमें हर चीज़ मुतनासिब और वेल बैलेंस थी, और हमारे रब का हमें हुक्म भी था कि वाक़िमुल वज़्न बिल क़िस्त वला तुक्सिरुल मीज़ान। अल्लाह के बनाए नेचुरल सिस्टम को मेंटेन करना, उसे बिगाड़ने की कोशिश नहीं करना। लेकिन हम इंसानों ने अपने पर्सनल इंटरेस्ट और वक्ती फ़ायदे के लिए रब के बनाए इस नेचुरल सिस्टम को बिगाड़ने की कोशिश की। यही वजह है कि हमारे मालिक ने फरमाया, ज़हरल फ़साद फिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदिन नास युज़ीक़हुम बादल लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन। ज़मीन के खुश्की और समंदर में इंसानों के हाथों हो रही हरकतों के कारण फसाद मचा हुआ है, और इंसानों का रब वार्निंग के तौर पर वक्त वक्त पर उन्हें उनकी कुछ हरकतों की सज़ा इस दुनिया में देते रहता है ताकि इंसान अपनी हरकतों से बाज आ जाए। हम इंसानों का मामला यह है कि चीज़ें और पावर्स मिलने पर हमें बहुत जल्दी घमंड और ईगो आने लगता है, लेकिन रब की किताब हम इंसानों को हमारी हैसियत याद दिलाती है कि ला तफरह, ज़मीन पर इतराव मत। याद रहे कि हमारे पास जो कुछ भी है वो हमारा खुद का नहीं है बल्कि हमारे मालिक का दिया हुआ है। लिहाजा इतराने की बजाय हमारा काम ये हो कि वक्त के फीमा आता कल्लाहु दारल आखिरह, जो कुछ हमें मिला है उस पर शुक्र अदा करके अपने लिए आखिरत के घर जन्नत को हम हासिल करने की कोशिश करें। वला तंस नसीबक मिनद दुनिया, दुनिया में अपने हिस्से को ना भूले बल्कि वह अहसन कमा अहसन अल्लाहु इलैक, जिस तरह अल्लाह ने हमारे साथ एहसान का मामला किया हम भी अल्लाह की मखलूक के साथ एहसान का मामला करते रहें। वला तबगिल फसाद फिल अर्ज़, और ज़मीन के अमन को ख़राब करने की कोशिश ना करें। लेकिन हम इंसानों को ये सारी चीज़ें याद नहीं रहती, हम इन्हें टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं, और फिर एक वक्त ये आता है कि इन्हें रब की अता न समझ कर इन्नमा ऊतीतुहु अला इल्म, अपनी मेहनत, अपनी कोशिश, अपने इल्म, अपने दिमाग को क्रेडिट देने लगते हैं, और इस तरह अना रब्बुकुमुल आला जैसी सोच हमें पैदा होने लगती है कि आई एम द सुपर पावर। और इस तरह अपनी अना और ईगो में इंसान इस कदर अंधा हो जाता है कि मासूम इंसानों की जानों से भी खेलने लगता है, पैदावार और नस्लों, प्रोडक्टिविटी और प्रोजीनी को नुकसान पहुँचाता है। बज़ाहिर बातें तो बहुत अट्रैक्टिव और अमन की करता है, लेकिन वह अलतुल किसाम अंदर से बहुत बदमाश होता है और भूल जाता है कि वल्लाहु यअलमुल मुफ़सिद मिनल मुस्लिह, इस्लाह की आड़ में फसाद करने वाले को अल्लाह खूब अच्छी तरह पहचानता है। वस्तकबरू फिल अर्ज़ि बिग़ैरिल हक़ वक़ालू मन अशद्दु मिन्ना क़ुव्वा, उसकी सोच में तकब्बुर और घमंड इस हद तक पहुँच जाता है कि उसे लगता है कि ही इज़ द मोस्ट पावरफुल, उससे ज़्यादा ताकतवर कोई है ही नहीं, उससे टकराने की हिम्मत किसी में है ही नहीं। वलम यरौ अन्नल्लाह अल्लज़ी ख़लक़हुम हुवा अशद्दु मिनहुम क़ुव्वा, क्या उसे ये बात मालूम नहीं कि जिस रब ने उसे पैदा किया वही असल में सबसे ज़्यादा ताकतवर और मोस्ट पावरफुल है। कद अहलक मिन क़ब्लिही मिनल क़ुरूनि मन हुवा अशद्दु मिनहु क़ुव्वतन व अक्सरु जमआ, जिसने उससे पहले वाली कौमों को तबाह के घाट उतार दिया जो खुद को मोस्ट पावरफुल समझते थे, जो अपनी कसरत तादाद पे इतराते थे, जिन्हें अपनी तरक्की और डेवलपमेंट पर बड़ा घमंड था। आज दुनिया में एक दूसरे पर अपनी सुप्रीमेसी जताने और अपनी ताकत का लोहा मनवाने के लिए हर मुल्क कोशिश कर रहा है। बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करके दूसरे प्लैनेट्स पर लाइफ को खोज रहा है,
लेकिन जिस ज़मीन पर उसे रब ने बसाया है वहाँ लाइफ बर्बाद करने के लिए ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स बर्बाद कर रहा है, अपने ही जैसे दूसरे इंसानों को मारने के लिए हथियार बना रहा है। क्या कभी हमने देखा कि कोई जानवर अपने ही जैसे दूसरे जानवर को मारने के लिए हथियार बनाता है? लेकिन हम अपने आप को मॉडर्न, तरक्की याफ्ता और वेल सिविलाइज बोलने वाले लोग मासूम जनता पर बम बरसाकर, खेतों को नुकसान पहुंचाकर, लोगों को भुखमरी की कगार पर लाकर खुद को बहुत ऊंचा और पावरफुल समझते हैं। लेकिन हमें मालूम होना चाहिए कि जंग से कभी कोई मसला हल हुआ ही नहीं है। लिहाजा याद रखें कि चाहे फतह के जश्न हो या हार का मातम और शोक, जिंदगी सदियां अपनी तबाही पर रोती है। यहाँ हमें मलका सबा के वाक़े में एक अहम चीज़ समझ में आती है। जब मलका ने एक मामले में अपने कैबिनेट में मशवरा मांगा तो सरदार उसे मशवरा देते हैं कि नहनु उलू कुव्वती व उलू बासिन शदीद, हम लोग आर्म फोर्सेस हैं और जंगी महारत रखने वाले हैं। उस पर मलका का जवाब हर मुल्क के सरबराह के लिए गौर करने लायक है। कालत इन्नल मुलूक इज़ा दखलू क़रियतन अफ़सदूहा व जअलू इज़्ज़त अहलिहा अज़िल्ला व कज़ालिका यफ़अलून। जब भी कोई बादशाह या मुल्क किसी दूसरे मुल्क पर हमला अटैक करता है तो वहाँ के अमन को ख़राब करके उसमें बहुत ज़्यादा फसाद और डिस्टर्बेंस पहुँचाता है, और इस तरह खुशहाल जीवन गुजारने वालों को बदहाली और ज़िल्लत का सामना करना पड़ता है, और ऐसा हमेशा से होता आया है। इसलिए जंग टलती रहे तो बेहतर है, हर एक के आंगन में शमा जलती रहे तो बेहतर है। एक दूसरे पर बर्तरी जताने के लिए खून बहाने की क्या ज़रूरत है? अंधेरे मिटाने के लिए घरों को जलाया तो नहीं जा सकता। लेकिन आज ये बातें करने का हमें कोई हक नहीं है, इसलिए कि हमने अपनी आपसी जंगों में अल्लाह और उसके रसूल की सारी तालीमात को अपने पैरों तले खुद रौंदा है। दुनिया में हो रहे खूनी खेल में खुद को भी हिस्सेदार मानते हुए अपने रब से माफ़ी मांगते हैं। माफ़ी मांगते हैं हम कि हम दुनिया इंसानियत तक उनके रब का कलाम नहीं पहुंचा पाए, उस कलाम में आई जंग की आयतों में रहमत का पहलू नहीं बता पाए। हम ये नहीं बता पाए कि किस तरह कम से कम नुकसान में ज़्यादा से ज़्यादा कामयाबी को हासिल किया जा सकता है। हम दुनिया को ये भी नहीं बता पाए कि इंसानों के रब ने इंसानों के लिए कम से कम 4 महीने जंग ना करने का हुक्म दिया है। हम ये भी नहीं बता पाए कि अमन को बरकरार रखने की क्या कीमत चुकाई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। हम ये भी नहीं बता पाए कि जंग की शुरुआत तो हमें करनी ही नहीं है, बल्कि अपने डिफेंस में जवाबी जंग करते वक्त भी वला तातदू, ज़्यादती ना होने का ख्याल रखना है। वहीं जनाहुल लिस्सल्म फजनहा लहा व तवक्कल अल्लाह, और अगर दुश्मन की तरफ से सुलह और सीज़ फायर का ऑफर आता है तो फ़ौरन उस ऑफर को कबूल कर लिया जाए और अल्लाह पर भरोसा रखा जाए। वहीं युरीद वहीं यहदऊ का फ़इन्ना हस्बक अल्लाह, ये बिल्कुल ना सोचा जाए कि सामने वाले की नीयत ख़राब है, वो पावर और गलबा रखता है, बल्कि अल्लाह को अपने लिए काफ़ी समझे। बेशक अमन और पीस एक अनमोल अतिया है, उसे हर कीमत पर हासिल कर लिया जाए, जिसका मुजाहिरा हमें सुलह हुदैबिया, ट्रीटी ऑफ हुदैबिया में देखने को मिल जाएगा। उस वक्त बज़ाहिर मोमिनों को ऐसा लग रहा था कि ये दबकर किए जाने वाला मुआहदा है और हमारी बेइज्जती और शिकस्त है, लेकिन अल्लाह ताला ने उसके बारे में फरमाया कि इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना, ये तुम्हारी अपनी जीत है। यही वजह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग को मुमकिन हद तक रोकने और टालने की कोशिश की, और जब जंग करनी भी पड़ी तो जंग की खातिर नहीं लड़ी, बल्कि जंग हक की खातिर लड़ी, ताकि मजीद जंगें ना हो, इंसानी जान और माल का मजीद नुकसान ना हो और इंसानियत राहत और अमन की सांस ले सके। इसलिए कि जिस्मों को जीतना कोई जीत नहीं है, जीत तो दिलों को जीतने का नाम है। अल्लाह की किताब और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक हम अपनी ज़िंदगी गुजारने का अहद करते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम में ये वस्फ़ और क्वालिटी पैदा कर दे कि जहाँ नफ़रत है वहाँ हम मोहब्बत को ला सकें, जहाँ जुल्म और सितम है वहाँ हम माफ़ी को ला सकें, जहाँ इख्तिलाफ़ात है वहाँ हम मेल मिलाप ला सकें, जहाँ झूठ है वहाँ हम सच्चाई ला सकें, जहाँ शक है वहाँ हम यकीन ला सकें, जहाँ नाउम्मीदी है वहाँ हम उम्मीद ला सके, जहाँ अंधेरे हैं वहाँ हम उजाला कर सके, जहाँ उदासी है वहाँ हम खुशी ला सके। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरआनिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम इन्नहु तआला जव्वादुन करीमुन मलिकुन बर्रुर रऊफ़ुर रहीम। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुमिनीन फस्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।
अल्हम्दुलिल्लाह वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मिय्यिल्लज़ी जाअ बिल हुदा वल फुरक़ान व सल्लि अला जमीइल अंबिया'i वल मुरसलीन व अलल मलाइकतिल मुक़र्रबीन व अला अस्हाबि रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला अज़वाजि रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला अहलि बैति रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला जमीइल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात। रब्बना इन्नका अंत समीउम मुस्तजीबुद दाअवात। रब्बना इन्नना आमन्ना वग़फ़िर लना ज़ुनूबना वकफ़्फ़िर अन्ना सय्यिआतिना व तवफ़्फ़ना मअल अबरार फ़ातिरस समावाति वल अर्ज़ अंत वलिय्यी फ़िद दुनिया वल आख़िरह तवफ़्फ़नी मुस्लिमन व अल्हिक़नी बिस्सालिहीन। रब्बना अफ़्रिग़ अलैना सब्रन व सब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब। अल्लाहुम्मा वहफ़ज़ना मिन कुल्लि बलाइद दुनिया व अज़ाबिल आख़िरह। रब्बि औज़ि'नी अन अश्कुरा निअमतका अल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदी व अन अअमला सालिहन तर्ज़ाहु व अदख़िलनी बिरहमतिका फ़ी इबादिका सालिहीन। अल्लाहुम्मा हासिबना हिसाबन यसीरा। रब्बना अस्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्न अज़ाबहा कान गरामा इन्नहा साअत मुस्तक़र्रन व मुक़ामा। रब्बि इरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिल-मुअ्मिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इबादल्लाह इत्तक़ुल्लाह रहिमनी व रहिमकुमुल्लाह। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अद्ल वल इहसान व ईताइ ज़िल क़ुरबा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वल बग़ी यईज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाहल अलिय्यल अज़ीम यज़्कुरकुम व लज़िक्रुल्लाहि अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन।